Good afternoon, everyone. It's my pleasure to be moderator of the 2 days national workshop on research methodology and ethics. Today is the day one. I am Rachna Bajaj from Department of Civil Engineering, Rabindranath Tagore University. It's my proud privilege to welcome you all and to inaugurate these national workshop. I would like to invite our coordinator, Dr. Sanjeev Kumar Gupta, Dean Faculty of the Engineering, to speak. Over to you, sir. Sanjeev, Good afternoon to all. Good afternoon. अरे श्रीवास्तव सर गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं सर? स्वागत आपका, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सर आपका. Sir, sorry to disturb our second speaker, Dr. Nigam madam. She is also there. Please welcome her also. Yeah. Rashmi ma'am. Yeah. And good morning to everyone. Sanjeev sir, she is the second speaker. Okay. Tomorrow she will deliver. Good morning, madam. Good morning. Okay, sir. Proceed, please, sir. संजीव सर. नहीं मैडम, मेरी तरफ से सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत सभी का. और मुझे लगता है कि फर्स्ट सेशन आप शुरू करें. आई थिंक ऑल द फैकल्टी मेंबर्स आर हियर फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द RNTU plus PhD scholars especially from the RNTU. They have already joined this workshop, and definitely it is beneficial to all, either they are from the BE, MTech or PhD. So I welcome you all in this workshop. और फर्स्ट सेशन आई नो श्रीवास्तव सर बहुत अच्छा, सर बहुत समय से जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते आ रहे हैं और सर का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट भी है ये, तो एक अच्छा सेशन होने वाला है. और मैडम भी जो है मैं जानता हूँ, और मुझे लगता है कपिल सर सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं. प्लीज स्टार्ट. थैंक यू. Thank you, sir. Now I would like to invite our convener, Mr. Kapil Soni, sir, Head of the Department, Civil Engineering, to deliver the opening remark. Okay, thank you, madam. Hello and good afternoon, everyone. I welcome all the participants and faculty members in the first technical session of this workshop, Research Methodology and Ethics, organized by Department of Civil Engineering, Rabindranath Tagore University. With warm greetings, I heartily welcome our today's resource person, Dr. A.K. Srivastav, sir. I am grateful to him for accepting our invitation and taking time for us. And I expect that in future also we will be connected to such types of events. Thank you very much, sir. I am also thankful to our respected Dean Engineering, Dr. Sanjeev Kumar Gupta, sir, for permitting us, as he is very kind and cooperative throughout. And without his guidance, we are able to do such types of events. Thank you very much, sir. So, dear all, once again, I heartily welcome all of you in this very important session of today's workshop, Research Methodology and Ethics. I am sure that today's session will improve our knowledge in the field of research and innovation, and also it will add our knowledge to do the same. With these words, I request Professor Rachna Bajaj, madam, for further proceeding. Thank you very much. Thank you, sir. Now, proceeding further, on this auspicious occasion, we have a dynamic personality, Professor Dr. A.K. Srivastav, sir, who is the head of the Department of Physics and also head of the Raman Center for Science Communication. He belongs to Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh, India. He has an organizational membership, ISRS, Dehradun, VIBHE, New Delhi, IIPT, Kanpur, BARC, HVSP, Mumbai, ISTAM, IIT Kharagpur, LSI, Barodara, IAPS, Allahabad, ASI, New Delhi, and many more. His research papers are more than 100 numbers. He has delivered many lectures as a resource person at the nationwide. He is the author of 4 books, columnist in daily newspaper Hitwar. Now, without spending too much time, I heartily request Dr. A.K. Srivastav, sir, to enlighten us with their valuable knowledge. Over to you, sir. Srivastav, sir. Thank you, madam. A very good morning to all of you.
in this two-day webinar. First of all, I welcome Honorable Chancellor Sir, Honorable Vice Chancellor Sir, convener of this program, Mr. Kapil Sir, co-convener Mr. Narendra Dudhaji, and the coordinator, respected Dr. Sanjeev Kumar Gupta Sir. He is also Dean of Faculty of Engineering, Professor Rasna Bajaj Ma'am, Dr. Rasmi Nigam Madam, research scholars, students, and all dear participants. Now, today I am just sharing, expressing a view on research methodology and ethics. We all know that there is a need of hour about research methodology, and just in few months or year, UGC has recognized, UGC has initiated research and publication ethics, because there are so many aspects of ethics. So I am sharing slides in briefly, because research methodology and ethics are very large. In short time, we can't express everything, but I have tried to express my view in a brief. Just I am sharing. Okay, madam, Bajaj madam. Yes, sir, it is visible. Please full preview the slides, sir. I have written, depicted at the bottom side at a glance. Here, research methodology and ethics is at a glance. First of all, research has 8 letters, and every researcher should have some quality to perform research, to do research, to express research, to share research. This means R for relevancy. In a researcher, what should be existing? There are a lot of points, but here a few points, that means 8 points are very important. As R for relevancy, E for energetic, S for subjective, E for eco-friendly, A for ability, R for roadmap, and C for competency and commitment and contents, and S for historical review. Next, there are so many definitions of research day to day, but here 16 definitions are there. But in a nutshell, we can say that research is the continuous systematic process. Some people say that this is the original contribution, systematic collection, search for knowledge, scientific and systematic research, part of activity, the manipulation of things, concept or symbols, scholarly work, creative work, scientific approach, systematic investigation, establish facts and reach new conclusions, a collection of methods, a careful consideration of a study, diligent search, detailed study, and searching it again and again. So, in a nutshell, we can say that research is a systematic process. Now, the research, am I audible, madam? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. In research, 4P has very
important role. It's pivotal. You can say that research is related with people. Research is related with problems, and research is related with programs, and research is as phenomena. Because 4P in every research, 4P is very beneficial and important. But we know that a lot of researchers nowadays don't understand what is project, what is research, what is dissertation. Here, there are three categories of research. One is at the university level. We know that at MTech level, at PG level, students prepare project work. And the second type, a research or project submitted by researcher to private organization, government organization for financial assistance. So, and such type of research category, a university professor or a college teachers, organizations prepare some reports and submit DEC, AICT, UGC. So, this is the main three categories of project, dissertation and thesis. Next, types of research. Just we have seen that what is research, category of research. There are so many types of research. I will discuss later on. But some main research are there here. Fundamental research, application research. These are the types of research. Objective research, explanatory research, exploratory research, correlational research, pure research, applied research, meta research. All know, well, this is a well known, but you might be know that meta research. आपने देखा होगा कि कोई ऐसे साइंटिस्ट हैं, कोई ऐसे कवि हैं, कोई ऐसे रिसर्चर्स हैं जो धरती की बात करते हैं, आसमान की बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ना धरती की बात करते हैं ना आकाश की बात करते हैं, वो बीच की बात करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, इन 20 years एगो आपने सुना होगा कि गणेश भगवान दूध पी रहे हैं, लोगों ने दूध चढ़ाया. कभी कुछ ये धार्मिक भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, लेकिन किसी ने देखा नहीं. तो सच टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड मेटा रिसर्च. Interdisciplinary, nowadays national education policy has stressed about interdisciplinary research and multidisciplinary research, laboratory research, theoretical research, clinical research, historical research, one-time research or longitudinal research, quantitative research, qualitative research, mixed research, casual research, decision-oriented, cross-sectional research, basic research, and problem-solving research and problem-oriented research. These are the types of research. Apart from 25, it may be a lot of, because day to day our research is going on. हम ये नहीं कह सकते हैं कि there are only 25 types. कल को हो सकता है कि 30 हो जाए. So, but in before a decade, the category of research, whenever I was participating in IGNOU workshop, so before a decade, these are the types of research, such applications, objective, types, pure, descriptive, exploratory, quantitative, qualitative, applied, correlational, and explanatory
These are the a decade ago, but nowadays the varieties of research are here. So in a researcher, first of all, decide how to plan. Planning is very important, because lack of planning, you can't perform your good research. So in a research plan, PLAN, there is a 4 letters plan. 4 points is very important. Whenever you are planning the research, 4 words are very important. P for personally concerned. आप कितना उस टॉपिक से कंसर्न है, इंटरेस्टेड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उस टॉपिक से आप रूबरू नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका रिसर्च प्लान जो है आगे चल करके सफल नहीं हो सकता है. सेकंड, L फॉर लेआउट, ब्लूप्रिंट. आपके रिसर्च प्लान का एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हम कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये बहुत जरूरी है. अक्सर क्या होता है, एक रिसर्चर बिना प्लान किए काम शुरू कर दिया. एट द टाइम ऑफ एंड ही कंफ्यूज्ड, वह कंपाइल नहीं कर पाता है कि हम क्या करें. तो सबसे पहले हमारा एक रिसर्चर का काम है कि हम प्लान को अच्छी तरह से हम करें, और वह क्या हो, प्रकृति के साथ हो, नेचुरल हो, अननेचुरल नहीं हो. इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है कि उसको सोचना है कि हमारे रिसर्च का टाइम फैक्टर क्या है. ऐसा नहीं जैसे हम शुरू करते हैं 2 इयर्स है, 3 इयर्स में थीसिस को जमा करना है, डिसर्टेशन आपको 1 साल में जमा करना है, जो आपका प्रोजेक्ट है वो 6 मंथ्स में जमा करना है. तो टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट है, जो डिसर्टेशन है, वो थीसिस है, सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क जो होता है उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है जनरली. जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई वर्क चल रहा है सरकार का, तो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है प्रोजेक्ट का. डिसर्टेशन का भी टाइम है 1 ईयर, और थीसिस का भी टाइम है 3 इयर्स. तो उसके अनुरूप आपको काम करना होगा. सेकंड, विजिट रिसर्च सेंटर एंड सुपरवाइजर. अगर आप प्लान करते हैं तो सबसे पहले आप रिसर्च सेंटर विजिट कीजिए कि कहाँ क्या हो रहा है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे लोग वहां पर जुड़े हुए हैं. सुपरवाइजर से बराबर संपर्क करें, और टू नो स्वॉट, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, और इसमें चैलेंजेस क्या है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्वॉट, SWOT. नैक में भी इसकी चर्चा होती है. आपको मालूम होगा कि इसके पहले स्वॉट लिखते थे, SWOT. हम जैसे जैसे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं तो हम मानवीय आधार पर सोचते हैं. थ्रेट कहने में चैलेंज लगता है, स्वॉट, T फॉर थ्रेट. थ्रेट से एक धमकी मिलता है जो उसको कर देगा चैलेंज. और एक बैलेंस होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो, बहुत क्लियर होना चाहिए. इसके अलावा जब हम प्लान करते हैं तो हमारा जो नजरिया है, हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो विजन है, हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो एस्पेक्ट है, वह 360 डिग्री होना चाहिए. चारों दिशाओं में हम देखें इस टॉपिक पर क्या काम चल रहा है, कैसे इसमें रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, उसको हमें स्टडी करें. जैसा कि टाइम फ्रेम हमने इसकी चर्चा किया. इसके बाद उसके में एक्सपेक्टेड कंक्लूजन्स क्या है, हम जो काम करेंगे तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट का सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल होगा. आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर बहुत जोर दे रही है कि हमारा जो रिसर्च हो वो क्या हो, सोसाइटी बेस्ड हो, जो बहुत जरूरी है. उसके बाद ही हम फर्स्ट स्टेप हम इनिशिएट करें, स्टार्ट करें, अदरवाइज हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब आपने हम प्लान कर लिया, रिसर्च को हमने समझ लिया, रिसर्च को हमने प्लान कर लिया. अब डिजाइन कैसे करें. तो डिजाइन जो है एक सिस्टमेटिक प्लान है. जैसे आपने देखा होगा सिविल इंजीनियरिंग जो कि ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, कोई ब्रिज बनता है तो आप क्या देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रिज बनना शुरू हो गया. सबसे पहले उसकी एक प्लान होती है, लेआउट होती है, उसका रॉ मटेरियल्स वहां गिराया जाता है, इंजीनियर्स उसका मेजरमेंट करते हैं, ऑब्जर्वर उसको देखते हैं, फिर सरकार देखती है कि ये एरिया साइट सही है कि नहीं, साइट सिलेक्शन की भी. तो तमाम बातों को डिजाइन करते हैं.
तो इसलिए आप हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसको सबसे पहला काम हमारा है डिजाइन करना. इट इज जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट which the architect prepares before the construction of a building. किसी बिल्डिंग को बनाने के पहले एक सिविल इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट इंजीनियर उसको पहले प्लान करता है. ऐसा नहीं कि बिल्डिंग को हमने बनाना शुरू किया और फिर उसके बाद में हम ऐसा कर दे. नहीं, एक लेआउट बनाना पड़ता है, एक डिजाइन करना पड़ता है. इसके अलावा सबसे पहले अब जब हम डिजाइन करते हैं, रिसर्च डिजाइन करते हैं, तो मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट. ऐसा नहीं जैसे कि हम अगर स्विमिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि स्विमिंग हम जंप कर लें, उससे पहले हम मुझे तैरना आता है कि नहीं, स्विमिंग किट हम पहने हैं कि नहीं. तो सबसे पहले व्हाट यू आर प्रपोजिंग टू डू, आप सोचते हैं हाउ यू प्लान टू डू इट, व्हाई यू सेलेक्ट द प्रपोज्ड स्ट्रेटेजी एंड लिमिटेशंस. हमारा लिमिटेशंस क्या होगा, हमारा डिलिमिटेशंस क्या होगा और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. एक प्लान जब करते हैं, डिजाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर आज हम लोग देख रहे हैं कि रिसर्चर्स इसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, न प्लान करते हैं, न प्रपोज करते हैं, न डिजाइन करते हैं. तो इसके कारण थीसिस की जो क्वालिटी है क्या हो रही है, बहुत अच्छी नहीं हो रही है. अगर इन बातों पर हम ध्यान दें तो हमारा जो थीसिस होगा, हमारा जो रिसर्च होगा, हमारा जो आउटकम्स होगा वह काफी क्या होगा, क्वालिटी बेस्ड होगा. नेक्स्ट, डिजाइन करने के पहले अगर आपका वर्क अगर एक्सपेरिमेंटल है तो आप उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करें कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका फीचर्स क्या है, वह कहाँ पर अवेलेबल है, हमको कहाँ पर हेल्प मिल सकता है. इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेक्निक क्या है, टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, प्री मानसून पोस्ट मानसून इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लेसिंग्स ऑफ गाइड. गाइड का आशीर्वाद होना भी बहुत जरूरी है. टाइम टू टाइम हम गाइड से भी संपर्क करें. ऐसा नहीं कि हम 6 महीना साल भर हम मिले नहीं और जाकर कहें सर हमारा थीसिस रेडी हो गया है, सर मेरा डिसर्टेशन रेडी हो गया है. दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस. सो इसीलिए इथिक्स की बात हो रही है कि इथिक्स में आपको कुछ जो इथिक्स क्या है आगे बताएंगे. तो आउटलाइन ऑफ द प्रपोज्ड चैप्टर्स, आपके जो चैप्टर्स हैं क्या होंगे, आप जिस पर काम कर रहे हैं उसके चैप्टर्स क्या होंगे. फर्स्ट चैप्टर्स में से इंट्रोडक्शन है मान लीजिए, सेकंड चैप्टर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, मेथोडोलॉजी है, फिर थर्ड चैप्टर को हम, चूंकि थर्ड चैप्टर जो है आपका इनिशिएटिव्स है, हम कैसे इनिशिएट्स करें, इसके बाद हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा और हम किसको रिपोर्ट करें. हम आप जो काम करते हैं तो गाइड को रिपोर्ट करते हैं, पीएचडी सेल को, रिसर्च सेल को आप रिपोर्ट करते हैं. इसके बाद आपका जो स्पेकुलेशन है, आपका जो चिंतन है वह एक ज्योग्राफिकल भी होना चाहिए, इन्वायरमेंटल भी होना चाहिए, सीजनल भी होना चाहिए. अब ऐसा नहीं कोई जम्मू का आदमी है तो फॉरेस्ट एरिया का जिक्र करे, कोई अगर मेघालय का है, नॉर्थ ईस्ट का है, वो रेगिस्तान की बात सोचे. आपका जो डिजाइन है वह ज्योग्राफिकल बेस्ड हो, इन्वायरमेंटल बेस्ड हो, सीजनल बेस्ड हो. और एज ए लीडरशिप आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक लीडरशिप होना चाहिए. आई एम द लीडर, यू फील आई एम द लीडर. पर डे आप फील कीजिए कि मैं जो कर रहा हूं दिस इज वेरी गुड. उससे सेल्फ क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. जब कॉन्फिडेंस होगा तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी. मान लीजिए आपने रिसर्च किया और किसी ने कहा कि अरे क्या है, कुछ नहीं है, आप डिमोटिवेट हो गए. नहीं सर, दिस इज द न्यू थिंग. आप मोटिवेट कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए. अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ किसी सीनियर्स ने, किसी गाइड्स ने आपको अप्रोच किया तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये हों. और नॉलेज फॉर एनालिसिस, आप पर डे, पर वीक, पर मंथ आप एनालिसिस कीजिए कि हम जो कर रहे हैं वह क्या, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. नेक्स्ट, आपके मेथड्स क्या हैं, जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड पायोनियर्स क्या हैं. पायोनियर मीन्स मान लीजिए कि आप सिविल इंजीनियरिंग में आप चूंकि स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, आप सॉइल पर काम कर रहे हैं, तो सॉइल से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडिया में, वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग हैं जो इस पर काम करते हैं, ये बहुत जरूरी है. उनसे आप राय ले सकते हैं, व्यू ले सकते हैं, आइडियाज को ले सकते हैं, थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, ईमेल से बात कर सकते हैं. और आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मेजर भी और माइनर भी. आपकी हाइपोथेसिस क्या है, और टीम वर्क हो, फॉर्मेट ऑफ मैनुअल हो, प्रिकॉशंस भी जरूरी है, क्या करें क्या नहीं करें. एक चेकलिस्ट बनाएं कि हम आज हमने ये काम कर लिया, कल मुझे ये करना है, क्योंकि चेकलिस्ट बहुत जरूरी है. इसके बाद जो रिसर्च डिजाइन है उसमें एक ही पार्ट है कि हम सैंपलिंग कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशनल व्यू को कैसे करेंगे,
स्टैटिस्टिकल व्यू को कैसे करेंगे और ऑपरेशनल व्यू को हम कैसे करें। बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका जो इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम है, पर्पस ऑफ प्रॉब्लम है, रिसर्च प्लान है, रिसर्च डिजाइन है, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, देयर आर सो मेनी पार्ट्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो यू डिसाइड कि सैम्पलिंग, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल जो है वह कैसे हम कंक्लूड करें। इसके बाद अब आपने प्लान कर लिया, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, डिजाइन कर लिया, तो इसको मुझे जबकि लास्ट में देना चाहिए था, लेकिन ये बताना जरूरी है कि आपका जो थेसिस है उसके पहले आप सिनॉप्सिस बनाते हैं 5 पेज का, 10 पेज का, 15 पेज का। उसमें पूरे नट सेल में आप बताते हैं कि मेरा जो प्लान है क्या, सिनॉप्सिस क्या है, रिसर्च प्लान, जिसमें कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर को आप बताते हैं, रैशनले ऑफ स्टडी, रैशनले ई लास्ट में लिखा, क्या लिखा है, ई, रैशनले मींस औचित्य। व्हाई डू यू सेलेक्ट दिस टॉपिक, आप जो टॉपिक पर काम कर रहे हैं, आप जो टॉपिक चुना है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या राज है आपका, क्यों कर रहे हैं, बार बार पूछिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि रेडीमेड मिल जाता है, लोग नहीं, क्योंकि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, दिस इज योर ओन टॉपिक, यू हैव इंटरेस्टेड, यू हैव कीन इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस टॉपिक, सो यू आर आंसरेबल कि इस टॉपिक को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, आपका एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इससे रिलेटेड जो काम किए रहते हैं, बुक्स है, मैगजीन्स है, जर्नल्स है, रिसर्च पेपर्स है, हम रेफरेंसेस को एपीआई फॉर्मेट में, IEEE के फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट्स रहते हैं उसको हम चर्चा करते हैं। इसके बाद से हम क्या करते हैं, थीसिस को हम डिजाइन करते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका डिसर्टेशन है, टाइटल है, प्रीफेस है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, मेथोडोलॉजी है, इसके बाद चैप्टर्स हैं, रिजल्ट एंड डिस्कशन है, समरी जिसको कंक्लूजन कहते हैं, और फ्यूचर प्लानिंग। अब फ्यूचर प्लानिंग की जगह लोग क्या लिखते हैं कि फ्यूचर स्कोप, ऐसा नहीं लिखना है। बहुत लोग हम लोग थीसिस चूंकि जांचने की आती है, लिखा रहता है फ्यूचर स्कोप। नो, फ्यूचर अपने आप में क्या है, भविष्य की बात करता है, स्कोप अपने भविष्य की बात करता है, तो करेक्ट वर्ड इज फ्यूचर प्लानिंग या ओनली स्कोप। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जाए, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, रिसर्च से, स्कॉलर्स से जुड़े हुए हैं, पूछा जाए कि आपका पर्पस क्या है, नहीं बोल पाते हैं। आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि जितने भी लोग जुड़े हैं इसमें से कोई ना कोई एक वर्ड्स उनको सटीक, जैसे हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में 10 कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो है, हीरोइन है, विलन है, और भी है, तो ऐसा लगता है कि 10 में से एक हम हैं। ऐसा मैंने महसूस किया है कि इस 10 कैरेक्टर्स में जो एक कैरेक्टर है जो मुझसे टैली कर रहा है, और हम क्या करते हैं और एंजॉय करते हैं कि मेरे जैसा बिहेव कर रहा है। तो आपका पर्पस क्या है आपका? तो इसमें से जो पर्पस है, जैसे मेरा रिसर्च करने का पर्पस क्या था, देश को नया चीज देना, देश के लिए काम करना, मेरा पर्पस था। लेकिन किसी का पर्पस क्या हो सकता है, फुलफिल द क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि हम जहां काम करते हैं वहां PhD अनिवार्य है, वहां MPhil अनिवार्य है, वहां प्रोजेक्ट बनाना अनिवार्य है। किसी का क्या है, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, CAS। जॉब में रहते हुए आप जॉब कर रहे हैं तो UGC ने, AICT ने एक प्लान किया है कि आप नौकरी करते हुए आप अपने को डेवलप कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। यह जो स्कीम है, यह जो है कैरियर एडवांसमेंट स्कीम है, उसके अंतर्गत भी लोग करते हैं। बहुत से लोग हैं जो 60 साल के हैं, जैसे हमारे यहाँ रायपुर साइंस कॉलेज में हमारे बहुत आदरणीय सर हैं जो रिटायरमेंट के 2 महीने पहले PhD किए। क्यों? जॉब में थे, जो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि प्रमोशन मिलेगा तो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा तो अच्छा पेंशन मिलेगा, प्लस एक नाम भी होगा कि सर नाम के पहले डॉक्टर लग जाएगा। किसी का क्या है, एज मून लाइट एंड सनलाइट, कोई इसको एक मून लाइट और सनलाइट की तरह देखता है, चांदनी। कोई चाहता है, रिसर्च क्यों कर रहा है, एक उसको अच्छा लगता है, जैसे मून लाइट काफी, चांदनी बहुत अच्छी लगती है। कोई क्यों कर रहा है, इनोवेट न्यू आइडिया, हम एक नई आइडिया निकालेंगे। किसी का पर्पस क्या है? मैं समझता हूं कि जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें से यह पॉइंट एक आ जाएगा।
ऐसा लगेगा कि मेरा सपना क्या है, कोई जॉब कर रहे होंगे तो क्या काश में आ जाएंगे। जॉब सिक्योरिटी, अगर हम पीएचडी नहीं करेंगे, अगर हम एमटेक नहीं करेंगे, अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो मेरा जॉब क्या है, सिक्योर्ड नहीं है, इसलिए जरूरी है। किसी का फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो क्या चाहता है, ओवरऑल क्या हो, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए क्या हो, डेवलपमेंट में हम उसमें जुड़े हम। किसी लिए क्या है, रैंकिंग के लिए, आज मान लीजिए NRIF है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ रैंकिंग की बात होती है, तो हमारे फैकल्टी, हमारे स्टाफ, हमारे एम्प्लॉय अगर पीएचडी नहीं होंगे, रिसर्च नहीं करेंगे तो रैंकिंग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। उनका ये भी एक पर्पस है। कोई करते हैं कि नहीं, एज ए पायोनियर, हम रिसर्च करके देश के पायोनियर की लिस्ट में आएंगे, हम लोगों के क्या होंगे, मसीहा होंगे, हम लोगों को लिए लोगों के गाइड बनेंगे, हम बताएंगे उनका सपना क्या है कि मैं रिसर्च करके अपने मोहल्ले के, अपने गांव को, समाज को, देश के लिए क्या करूंगा, सुझाव दूंगा, एज ए कंसल्टेंट काम करेंगे। उनका सपना क्या है, सुझाव। जैसे आपने देखा होगा कि अभी मुझे याद आ रहा है कि मदर टेरेसा का नाम आपने सुना है, तो ये मदर टेरेसा का एक लाइन था, लोग एक दूसरे सभी को प्यार करते हैं, लेकिन आई वांट अनवांटेड पीपल, मैं उसे प्यार करती हूं जिसे कोई प्यार नहीं करता। आई वांट अनवांटेड पीपल, तो छूटा हुआ समाज है, जो तबका है, जो वर्ग है, मैं उसे स्नेह देती हूँ, मैं उसे सम्मान देती हूँ। तो कहने का मतलब जो पायोनियर है वो समाज के लिए आगे बढ़ता है। फॉर कंप्लीटनेस, अपने को कंप्लीट होने के लिए कि हम पीएचडी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम रिसर्चर्स हैं, अपने को हम बिना रिसर्च के हम क्या लगता है, मुझे अधूरापन लगता है। किसी का एज ए बर्ड, एज ए ब्रिज इन बिटवीन रूरल एंड अर्बन, गांव और शहर के बीच की जो खाई है उसका पूरा करने के लिए भी क्या है, रिसर्च किया जाता है, रिसर्च हो भी रहा है। टू एस्टेब्लिश एज ए हीरो, मुझे हीरो बनना है, जिस संस्थान में मैं काम कर रहा हूं वहां मैं हीरो रहूं। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, मैंने उसको 10 बार पढ़ा है। आप सोचिए क्या आपने कितनी बार पढ़ा है, जो जितनी बार पढ़ेगा उसका अनुभव अच्छा होगा, वह हीरो होगा। हीरो का मतलब नहीं है कि हम एक स्टिकर लगा लें हीरो और इस पर हम चस्पा कर लें, पेस्ट कर लें और यहाँ लिखा हो हीरो। यू आर नॉट हीरो। अगर आप हीरो फील कर रहा होगा, आई एम द हीरो एंड टू एस्टैब्लिश एज ए हीरो फॉर, और कुछ लोगों के लिए क्या है कि फॉर दुनिया मेरी मुट्ठी में, एक ऐड भी आता है कि दुनिया मेरी। अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप दम क्या है, डे टू डे आप जुड़े हुए हैं। आप जो लोग डेली अखबार पढ़ते हैं, दुनिया की न्यूज को जानते हैं, दुनिया उनके क्या है, पूरी मुट्ठी में है। और टू एक्सेप्ट चैलेंज, हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। एक रिसर्चर जो है कभी हारता नहीं है, वह चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। बस एज ए विजनरी, वह एक दर्शन जिसको बोलते हैं, माने दूरदृष्टि। जैसे कि सलीम अली जो आपने देखा होगा कि पक्षी विज्ञानी है, वो क्या है, विजनरी है पक्षियों के बारे में। टू अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च, हमारा ये भी मकसद है जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानना है। किसी का मकसद है कि फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, हम इसलिए रिसर्च कर रहे हैं कि जो वेस्ट, जो बेकार चीजें हैं उसको हम कैसे मैनेज करें। फॉर अपग्रेडेशन एंड अपग्रेडेशन इन एनी फील्ड, मतलब कि किसी हम रिसर्च करके किसी भी फील्ड में हम मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। स्पेशली मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमारा जैसे आप देखिए आज जो बिजनेस है, आज जो उसमें क्या है, एक बिजनेसमैन का एग्जांपल लीजिए आपकी, आज हर घर में आप जहां पर रहते हैं एक डेली नीड्स की दुकान है। हम मॉल नहीं जाते हैं डेली, हम मार्केट डेली नहीं जाते हैं, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको क्या चाहिए, उसकी मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, उससे फीडबैक, ये सब काउंट करते हैं। इसके बाद फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम, हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम को हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। फ्रॉम ओपीडी टू स्माइल, फ्रॉम ओपीडी, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या, कहाँ जाते हैं, पहले ओपीडी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हम गए वहां बात, हम मुझे आंख दिखाना है तो ओपीडी रेफर करता है आंख वाले को, मुझे हार्ट दिखाना है तो ओपीडी रेफर करता है हार्ट वाले को। वैसे ही एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो वो रेफर करता है
कि नहीं इसमें ऐसा करना है, इसको यहाँ करना है, और वहां से कैसे लौटता है, स्माइल होकर के। इसके बाद टू डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल, टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल। आप जहाँ काम करते हैं, कोई रिसर्च प्लान प्रपोजल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये भी एक सपना है। हम इसलिए रिसर्च कर रहे हैं कि हम प्रपोजल बनाते हैं। टू एक्सिक्यूट रिसर्च प्रोजेक्ट, आप रिसर्च डायरेक्टर हैं, आपकी संस्था में, किसी एनजीओ में, किसी प्लांट में आप क्या है, डायरेक्टर है, रिसर्च को देख रहे हैं, आप प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। तो कैसे हम क्या करेंगे, उसको हम कार्यान्वित कैसे करेंगे, इसके लिए कर रहे हैं। किसी का टू इम्बाइब रिसर्च, इम्बाइब मीन्स हम चाय पीते हैं, हम दूध पीते हैं। आपने सुना होगा कि ड्रिंक वाटर, टेक टी, लेकिन हम पूरे किताब को हमने क्या किया, खा लिया मीन्स क्या, इम्बाइब, आत्मसात कर लेना। किसी भी चीज को हम रिसर्च इसलिए कर रहे हैं कि जहां पर हम जुड़े हुए हैं, जहां जो हम काम कर रहे हैं, उसको हम क्या करें, आत्मसात कर लें, ये भी एक मकसद हो सकता है। और माइक्रो एनालिसिस। इसके बाद टू इज लाइफ एज ए सिंपल, रिसर्च करने से क्या होता है, लाइफ सिंपल हो जाती है। और एक और सपना होता है, जैसे मान लीजिए कि फैशन के दौर में जो हम गले में महिलाएं नेकलेस पहनती हैं, नेकलेस, एक शेक्सपियर या किसी का नोवेल में नेकलेस भी है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऑर्नामेंटल, क्या भाई, तो मेरे कुछ नहीं, मेरा कोई सपना नहीं है, मेरा कोई पर्पस नहीं, मेरा सपना क्या है, डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव। क्या है, नाम के पहले डॉक्टर लग जाए, मेरा कोई सपना नहीं है, नाम के पहले क्या लग जाए, डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव। ये भी एक सपना है, ये भी एक पर्पस है। नेक्स्ट, selecting the problem, this is very important whenever going to do research, how select this topic, problem को कैसे select करें, हमारा problem कैसा हो। तो first of all these are the main points। first of all by speculation, आप उस पर चिंतन कीजिए, डे नाइट, नाइट डे, मंथ्स, ईयर्स, चिंतन कीजिए कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में। लोग सर्च करते हैं, नेट पर कर सकते हैं, लेकिन पहले जिस जहाँ पर हम रहते हैं वहां देखिए क्या प्रॉब्लम है, उसका उपाय क्या हो सकता है। ड्यूरिंग सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम यू स्पेंड टाइम मोर एंड मोर। अगर आप रिसर्च 3 साल में करते हैं तो प्रॉब्लम को साल भर सर्च कीजिए, 1 ईयर, कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तब आपको एक आवाज आएगी, नहीं, देयर इज ए प्रॉब्लम, समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर। और अब क्या करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट, वह प्रॉब्लम कैसा हो, फेमिलियर एंड फिजिबल हो। वह प्रॉब्लम कैसा, उसके लिए से संबंधित बजट एंड टाइम। अब हमने इतना बड़ा सोच लिया, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास समय ही नहीं है। सपना तो बहुत है, लेकिन बजट अलाउ कर रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। स्टडी थॉरोली, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत, जितना अधिक पढ़ें, पर डे न्यूज़पेपर पढ़ें, जिस पर आप काम कर रहे हैं, अखबार के सारे पृष्ठों पर, पेजेस पर आपके से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, क्या चल रहा है, उससे आपका एक सपोर्ट मिलेगा। कीन इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कैसा हो, साधारण नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। आप जो रिसर्चर्स हैं काम करने के बाद ही खाना खाते हैं, जैसे लेट नाइट, रात में मैंने 12 बजे खाना खाया, इस पीपीटी को बनाया, मैंने कहा नहीं, पहले पीपीटी बनाऊंगा, इसके बाद खाना खाऊंगा। खाना पहले नहीं, पहले, चूंकि जो रिसर्चर्स है वो क्या है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, कीन इंटरेस्ट है। इसके बाद हैव फेथ टिल कंप्लीशन, आपका रिसर्च पूरा होने तक क्या होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। एक रिसर्चर्स को क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मैडम, ये फिगर दिखाई दे रहा है, बजाज मैडम? Yes sir, yes sir. It दिस is इज वेरी visible. इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार में मेरा गांव जो है वो नदी के किनारे है। जब मैं छठवीं 7वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं देखता था, नदी में जब जाता था घूमने के लिए, नहाने के लिए, तो गांव के किनारे के जो मछुआरे थे डेली मछली मारते थे, जाल फेंकते थे, जाल लेकर जाते थे, जाल सुखाते थे। तो मैंने पूछा कि तुम इतना दूर क्यों जाते हो, इतना दूर क्यों जाते हो, यहीं पर नदी है, यहीं पर पानी है, यहीं पर मछली मिल जाती। कहा कि बाबू ऐसा है कि हम लोग
जहां तक शाम तक हम लोग जाते हैं देखने के लिए कि मछलियां कहाँ ज्यादा मिलती है। एक स्पॉट डिसाइड करते हैं, वेरी स्पॉट टू कैच फिशेस, वहां मिलेगी, वहां मिलेगी, सब जगह है लेकिन वहां चांसेस ज्यादा है। दैट मीन्स एक रिसर्चर्स को पूरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 रिसर्च पेपर पढ़ लिए और टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, नो, 100 पेपर पढ़िए। फॉल्स फिशिंग, इसका नाम मैंने दिया फॉल्स फिशिंग, मतलब कि टॉपिक सेलेक्ट करने के पहले जैसे कि मछुआरा 10 जगह जाल फेंकता है, तब उसको स्पॉट डिसाइड करता है कि यहाँ पर फिशेज मिलती हैं, कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी। वैसे ही एक रिसर्चर्स को रिव्यू ऑफ लिटरेचर अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, नाम याद होना चाहिए। जिस फील्ड में आप काम करते हैं उस फिंगर्स पर, जैसे मैं रिमोट सेंसिंग में काम करता हूँ तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्रा में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वहां के साइंटिस्ट मुझे दिखाई दे रहा है कौन काम कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आपको याद नहीं है तो पायोनियर्स का नाम याद नहीं है, उस फील्ड के 2 साइंटिस्ट का नाम याद, क्या है, नथिंग। तो इसलिए आप फॉल्स फिशिंग कीजिए। नेक्स्ट, आपका जो रिसर्च हो कैसा हो, फ्रॉम लैब टू लैंड। आज रिसर्च क्या हो रहा है, लैंड टू लैब, लैब में ही रिसर्च हो गया, लैब में ही रिसर्च हो गया, थीसिस जमा हो गया, इवेलुएट हो गया, अवार्ड हो गया, मिठाई बट गई, पार्टी हो गई, डॉक्टर ए के श्रीवास्तव। नो, आपका रिसर्च लैब से आम जनता के पास जाए, उन किसानों के पास जाए, उन भारतीयों के पास जाए, आपने क्या किया है। ये दिस इज आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी एक स्टेटस है कि हमारा जो रिसर्च हो कैसा हो, फ्रॉम लैब टू लैंड, नॉट लैंड टू लैब। नेक्स्ट, टू फॉलो कॉन्सेप्ट। आपका दायरा जितना बड़ा होगा, आपका दायरा जितना अधिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे, जितना अधिक, जैसे कि सिविल इंजीनियर फिर याद आ रहा है कि आपका जैसे देखिए कोई पिलर बनता है तो उसका बेस जितना चौड़ा होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी अलग बात है कि मटेरियल्स की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आप पहले कुम्हार के जो चाक होते हैं, जो गांव में जो चाक पोटर जो होते हैं बनाते हैं चाक, आपने देखा होगा उस कुम्हार के जो चाक होते हैं पहले मिट्टी का एक लुथड़ा जो है वो रखता है। एक मान लीजिए एक मिट्टी का वो लुथड़ा क्या किया, रख दिया और उसको घुमाता है, और घुमाने के बाद उसको क्या करता है, कोन बना देता है और तब उसको बर्तन को बनाता है। लेकिन आपका जो मिट्टी का जो लोथड़ा है, मिट्टी का जो माने मटेरियल है वो लोथड़ा ही कम होगा, और जब उसको आप ऐसे बनाएंगे तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। यानी कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर अधिक से अधिक पढ़ना होगा, तभी जाकर के आपका कॉन्सेप्ट मिलेगा। नेक्स्ट, सैंपल डिजाइन। सैंपल को हम कैसे डिजाइन करेंगे, टू व्यू और इमेजिन सैंपल। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए एक टारगेट पॉपुलेशन है और आपने उसमें से क्या ले लिया, एक सैंपल ले लिया। इसके बाद उस सैंपल का साइज क्या है, जैसे सॉइल टेस्टिंग होती है सिविल इंजीनियरिंग में, रेलवे ट्रैक पर जो आप जो आपने सुना होगा, मैं हम चूंकि लोगों के बीच में रहे हैं, ब्लास्ट टेस्ट होता है कि गाड़ी का स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर है, 120 किलोमीटर पर आवर है, 200 किलोमीटर पर आवर है, वो क्या है, वह जो है सैंपल साइज ब्लास्ट टेस्टिंग होती है, वह कितना स्ट्रेंथ बर्दाश्त कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद आपको फील्ड वर्क जाना होगा। ऐसा नहीं कि हम जो काम करते हैं किसी दूसरे से, रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से, किसी अदर मीडियम से हमने क्या किया, डाटा कलेक्ट कर लिया, नहीं। आप फील्ड में जाएं, आप लोगों से मिले, आप लैब में काम करें, और सबसे पहले आप ऐसा पूछिए कि मैं ऐसा हूं। मुझे अब याद आ रहा है कि एक फिल्म थी, हम लोग तो फिल्म नहीं देखते हैं लेकिन गाने हम लोग रोड पर चलते हैं सुनते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। अगर कोई टॉपर है तो वो कह सकता है मैं ऐसा क्यों हूं, लेकिन जो टॉपर नहीं है उसको आंसर मिल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों हूं। कहने का मतलब कि एक रिसर्चर जो है फील्ड में अगर जाएगा तो काम को सीखेगा, रिसर्च को सीखेगा, और उसकी एक आवाज जो होगी, फीलनेस जो होगी,
कि मैं ऐसा क्यों हूं। नेक्स्ट, डाटा कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वयं को जाइए, डाटा कलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सैंपलिंग डिजाइन। सिलेक्शन ऑफ, ऐसा नहीं कि हम कहीं गए और सिलेक्शन कर लिए, नो, आपका मकसद होना चाहिए कि मुझे क्या लेना है, मुझे क्या, जैसे जस्ट फॉर मैं एक एग्जांपल दिया हूं कि भारत में सभी जगह डाकघर है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, तो वहां पर एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिलता था इनकम टैक्स से बचने के लिए, नेशनल सेविंग स्कीम, और ये भी मिलता था कि कोई विकास पत्र था। तो मेरा कहना है कि आप बैंक में जाते हैं, किसी पॉलिसी लेते हैं, तो अगर आपने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्या लेना है, मुझे क्या करना है, तो फिर एजेंट क्या करेगा, अपना मनमानी करता है। आप गाइड से पूछते हैं कि सर क्या टॉपिक ले, रिसर्च किसको करना है, आपको करना है। दिस इज, तो हम क्या, हमारा जो सैंपल का डिजाइन है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉट रेस्पॉन्डेड। ऐसा भी मान लीजिए हमने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन मिल गया और आरडीसी का लेटर मिल गया, आरडीसी का लेटर मुझे मिल गया और हम क्या हो गए, सो गए, क्या हो गए। और आजकल एक नया ट्रेंड आया है, पीएचडी है कि नहीं, परसुइंग पीएचडी। नो, परसुइंग पीएचडी हम कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत उचित नहीं है। आजकल डिजिटल मोड में हो रहा, हम सब लिखते हैं यस नो यस नो यस नो नो यस, व्हाट परसुइंग। रजिस्ट्रेशन के बाद मैं तो समझता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रिसर्च पूरा हो गया है और रजिस्ट्रेशन होता है और टाइम लिमिट में वो थीसिस जमा हो जाता है। तो इसके बाद आपकी रिसर्च में क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसके बाद प्रॉपर सैंपलिंग, हम सैंपलिंग करते हैं तो कैसे करें, उन सामान को कैसे रखें, कहाँ पर रखें, किसकी निगरानी में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि इलेक्शन जब होते हैं तो वहाँ एक क्या स्ट्रॉन्ग रूम रहता है, कलेक्टर साहब के जो जिला प्रशासन है वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रूम होता है एग्जामिनेशन हॉल में भी, कि उस उत्तर पुस्तिका को, आंसर बुक्स को कहाँ रखा जाए। तो आपका प्रॉपर सैंपलिंग होना चाहिए। इसके बाद उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने देख लिया कर लिया हो गया, उसको जैसे कि हम टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उस तरह से नजरिया होना चाहिए। इसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरडीसी लेटर जो मिलता है पीएचडी का, उसको दिखाने से कोई नहीं समझे कि हम पीएचडी कर रहे हैं। आपके वेशभूषा से लग जाए, कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग क्या बोलते हैं, आप दाढ़ी नहीं बना रहे हैं, समय पर खाना नहीं खा रहे हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, रिसर्चर हो गया है। क्या हो गया है, रिसर्चर हो गया है। आपको देख करके लगना चाहिए कि क्या है, आप रिसर्चर हैं। वॉन्डरिंग एज ए वेगाबैंड, जैसे खानाबदोश घूमता है, वैसे ही एक रिसर्चर की हालत हो जानी चाहिए। कब खाना है, कब सोना है, कब कहाँ जाना है, दिन रात, रात दिन, वो क्या है, लीन है, किसमें, रिसर्च में। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आज मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मैं सोच रहा हूं कि आज मेरा ये लास्ट प्रेजेंटेशन है, तो मेरे अंदर एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। अगर हम सोचें कि कल भी हम बोलेंगे, एनर्जी डाउन हो जाएगी। जिस तरह से सपोज टू बी ए फर्स्ट एंड लास्ट, सपोज टू बी ए फर्स्ट एंड लास्ट, जैसे कोई, मैंने यहाँ एक पिक्चर में दिया है कि जिस तरह से लवर एंड बिलवर मिलते हैं और वो सोचते हैं कि आज हमारी लास्ट मुलाकात है, तो उनका क्रेज क्या होता है, ज्यादा होता है, और फिर कल मिलेंगे वो क्रेज नहीं होगा। उसी तरह से रिसर्चर्स जब काम करते हैं तो उनको ऐसा होना चाहिए कि आज जो मैं काम कर रहा हूं, ये आज तो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, आज जो वर्क कर रहे हैं आज बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इस तरह से फील होना चाहिए। नेक्स्ट, कहा जाता है कि सब कुछ तो ऑन पेपर हो रहा है, हम कर रहे हैं, लेकिन मुंगेरी लाल की तरह सपने भी देखना चाहिए। मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने सीरियल चलते थे, मतलब कि आपको फील हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, वह मजा आ गया, आज डाटा मैंने कलेक्शन किया, आज मैंने प्लान किया, आज मैंने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, मजा आ गया, ये फीलिंग्स आना चाहिए।
पायलट सर्वे, डे टू आपकी पायलटिंग भी सर्वे होनी चाहिए कि हमारा प्रोग्रेस कैसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने आप को सेल्फ कंसोलेशन कर रहे हैं और बहुत खुश, नो। इसके बाद बर्ड्स आई व्यू, आप जो काम कर रहे हो उसमें नजर कैसी हो, बाज की तरह हो। जैसे कोई बाज जो है आप देखते हैं ना, उड़ता रहता है, जैसे देखता है कि हाँ हमारा शिकार है, तुरंत कैच करता है। नेक्स्ट जो मैंने चर्चा किया कि बजट भी होना चाहिए। नेक्स्ट चिंतन, आप खाली बैठ करके, कभी कभी क्या लगता है लोग समझते हैं यार ये बेकार बैठा हुए हैं, खाली बैठे, नो, आप सोफा पर बैठ करके, किसी किनारे में बैठ करके आप चिंतन कीजिए, सोचिए। मैं इसरो में गया था, डीआरडीओ गया था, तो वहां साइंटिस्ट जब चाय पीते हैं तो आधे घंटे पीते हैं, सोचते रहते हैं। क्योंकि चिंता जो है नहीं करनी है, क्या करना है, चिंतन करना है, चिंतन, स्पेकुलेशन। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यूजीसी ने इसको लागू भी किया है कि बिना रिसर्च पब्लिकेशन इथिक्स के आपका जो आरएम है वो वैलिड नहीं है। तो इथिक्स क्या है? इथिक्स कोई बड़ी चीज नहीं है, हमारी भारत की संस्कृति इथिक्स बिहेवियर। अब इथिक्स जैसे मान लीजिए कि एक पानी का एक ड्रॉप है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर क्या होता है, जैसे पानी का बूंद हो गया, टैप वाटर हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया और सागर हो गया। एक पानी का स्वरूप क्या हो गया, एक ड्रॉप से क्या हो गया, सागर। यानी कि जो हमारा बिहेवियर है वह जाकर क्या बनता है, इथिक्स बनता है। मैनर्स, कैरेक्टर, प्रिंसिपल, आइडिया, थॉट्स, पॉलिसी, हैबिट, इनिशिएटिव, एग्जिस्टेंस, परफेक्शन। इथिक्स का मतलब कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि महात्मा गांधी जब वॉक करते थे तो आप समय मिला सकते हैं, वह टाइम सेट था। जैसे मैं व्हाइट शर्ट पहनता हूं, एक मेरी पहचान बन गई है। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, पहचान बन गई है। आपका जो बिहेवियर है वह ऐसा हो, इथिक्स बन जाए, मतलब कि परमानेंट, मतलब कि सर टाइम से आ जाते हैं। सर ने जो टेस्ट किया है, डाटा कलेक्शन किया है, इसमें बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि बड़ी अच्छी एक्यूरेसी है। दिस इज कॉल्ड इथिक्स। इथिक्स का मतलब कि मोरल, आपका मोरल कितना हाई है। नेक्स्ट, इथिक्स में आपने क्या देखा कि 6 वर्ड, ऐसे इथिक्स के बहुत सारे पैमाने हैं, मेजरमेंट्स हैं, लेकिन एक इथिक्स में बहुत जरूरी है। नेट पर इथिक्स सर्च करने से आप इथिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। इथिक्स में क्या है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखेगा। स्वर्ग अगर देखना है, स्वर्ग कहाँ, क्या करना होगा, स्वर्ग में कैसे जाएंगे, जब हम मरेंगे। वैसे ही इथिक्स हमारे अंदर कब आएगा, जब हम सुबह से शाम तक अच्छा परफॉर्म करेंगे। सुबह जगेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नाश्ता करेंगे, पूजा करेंगे, समय पर उस ड्यूटी करेंगे, हमारा इथिक्स क्या हो गया, ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो ई फॉर इमोशन, आपके अंदर क्या हो, भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, भावना। टी फॉर ट्रुथ, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। और आपके अंदर जो आत्मा है वह जीवित होनी चाहिए। अब आप पूछिए अपने आप से, क्या ये मेरे अंदर है, मैं ऐसा क्यों हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऐसा क्यों हूं। इसको फॉलो करना पड़ता है, डेली परफॉर्म। जब आप एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, 3 साल, 5 साल तक ये काम कर लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, ब्रांड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ब्रांड। आज बॉलीवुड में चाहे कहीं भी जो ऐड देते हो क्या है, एक ब्रांड बन चुके हैं। ऐसा नहीं, वो दिन रात, जैसे कि अभी एक आईजी गौतम साहब थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि जो सिपाही ट्रेनिंग में खून बहाता है, सॉरी पसीना बहाता है, जो सिपाही ट्रेनिंग के दरमियान पसीना बहाता है, पसीना, वह ड्यूटी में खून नहीं बहाता है। देखिए कितनी बड़ी चीज है कि अगर आपने ट्रेनिंग में पसीना बहाया है तो ड्यूटी में आपका खून नहीं बहेगा, आप मारे नहीं जाएंगे।
आप शिकार करके लौटेंगे। नेक्स्ट, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एथिक्स, मोरल एथिक्स, स्पिरिचुअल एथिक्स, सोशल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, वार एथिक्स, ये प्रेजेंटेशन एथिक्स भी है। हर चीज का एथिक्स है। हम आजकल देखिए हमारे कॉमेडी की वजह से एक बाजार बन गया है, काउंसलर मार्केट में आ गए हैं, इंग्लिश कैसे बोलें, व्यक्तित्व को कैसे बनाएं, योगा क्लासेस, मैरिज ब्यूरो, ये सब क्या है? फॉल्स है। हमारे कमियों को उसने देखा है और मार्केट बना करके पैसा कमा रहा है। कैसी आपकी कि बच्चे को दिमाग कैसे तेज हो, कैसे वो अच्छा लर्न करे, कैसे वो अच्छा मार्क्स पाए, ये क्या है? बाजार बन गया है। हर चीज में एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। लेकिन हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। इन्वायरमेंटल एथिक्स हो, एजुकेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स। इसके बाद एक जस्ट डिफिनेशन है, एथिक्स इज द साइंस ऑफ मोरालिटी। जैसे कि हमने कहा ना, मेन है नैतिकता। मेन क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमने 200 लोगों को हमने भेजा, इसका लिंक भेजा, ब्रोशर भेजा, आपने भेजा 200 लोगों को, कितने लोग जुड़े? 119 दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? 125 अराउंड 120। तो अब ये इनका इथिक्स है, जो लोग जुड़े हैं इनका इथिक्स क्या है? ये मोरल ज्यादा है, ये कमिटेड है, ये बहुत अच्छे हैं, ये देश के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग व्हाट्सएप देखे, ऐसे व्हाट्सएप देखा, अरे यार चलो, नॉट गुड थिंग्स। तो व्हाट इज द हाईएस्ट गोल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मोरल जजमेंट, ये सब होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोरल फिलॉसफी क्या है। इथिक्स का मतलब है कि यहाँ देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है, एक झूला पर 2 लोग बैठे हुए हैं। अगर झूले पर अगर साथ साथ दोनों पैर नहीं मारे तो क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा। साथ साथ चलना, साथ साथ रहना, ये क्या है? इथिक्स है। एक गाड़ी का पहिया है, दोनों साथ चलते हैं, हस्बैंड वाइफ है, भाई बहन है, परिवार है, साथ साथ चलते हैं। मतलब कि हम एडजस्टमेंट, एथिक्स क्या है? एडजस्टमेंट है, नैतिकता है। हम रिसर्च पेपर को लिखते हैं तो अपना ओन चीज लिखें, ऐसा नहीं किसी दूसरे का लिख लिए। ऐसा हो रहा है, प्लेजरिज्म की बात आती है। तो मोरल फिलॉसफी इज द जनरली कंसर्न्ड विद व्हाट इज मोरलिटी, गुड और बैड। बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू। दूसरी बात कि टोटली मोरल फिलॉसफी कंसर्न्स मैटर्स ऑफ वैल्यू। हमारे इस टोटल नैतिकता से रिलेटेड है। शेक्सपियर ने लिखा है, आगे मैं बताऊंगा, कि देयर इज नथिंग गुड और बैड, इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में कोई चीज ना अच्छी है ना बुरी। देयर इज नथिंग गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। एक चाकू से डॉक्टर ऑपरेशन करता है और एक चाकू से हम किसी की हत्या कर देते हैं। चाकू बुरी नहीं है, मैं बुरा हूं। एक आग से किसी कोई भूखा व्यक्ति आग जला करके, लकड़ी जला करके, खाना पका करके अपने भोजन को मिटाता है, मैंने क्या बोलते हैं, जो भूख को मिटाता है। और एक व्यक्ति किसी घर में आग लगा देता है, समाज में आग लगा देता है। आग दोषी नहीं है, वी आर। इसके बाद एथिक्स के जो मेन टाइप्स हैं, अभी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने समराइज में कर रहा हूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एथिक्स। फर्स्ट मेटा एथिक्स, सेकंड नॉर्मेटिव एथिक्स एंड थर्ड अप्लाइड एथिक्स। अब मेटा एथिक्स क्या है? मेटा एथिक्स का मतलब है कि जैसे आपने 500 लोगों को आपने लिंक भेजा, थैंक यू सर, मैसेज गया आपका, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, मैं जुड़ूंगा, लेकिन जुड़े नहीं। आपने कोई प्रोग्राम किया, हमें वो आपको आपके साथ हैं लेकिन साथ नहीं है। सच टाइप ऑफ एथिक्स इज कॉल्ड मेटा एथिक्स। आपकी सारी बातों में राय में हाँ मिला रहे हैं लेकिन आपके साथ नहीं है। हमारे साथ कितने लोग हैं? 120 लोग ही साथ में। तो कहने का मतलब कि ये रिलायबल नहीं है। मेटा एथिक्स की जिनकी पर्सनालिटी होती है वो रिलायबल नहीं है। तो मुझे फाइंड आउट करना है एज ए रिसर्चर कि मैं उनको किस प्रोग्राम, जैसे कि मान लीजिए कोई सिपाही बीएसएफ का है, कोई सीआरपीएफ में है, कोई आईटीबीपी में है, कोई स्टेट पुलिस में है। तो जो बीएसएफ का जो सिपाही है, जो
मैंने क्या बोलते हैं सैनिक है वह ज्यादा वफादार है, और एक जो स्टेट पुलिस है आप जानते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मेटिव एथिक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बिजी है, आपने फोन किया कि भाई मेरे यहाँ एक वेबिनार है, आप, अरे अच्छा कपिल सर ने फोन किया है, मैं तो रहूंगा, समय निकाल लूंगा, ऑफिस जाऊंगा, इंस्टीट्यूट जाऊंगा, यूनिवर्सिटी जाऊंगा, और बॉस से कहूंगा, सर से कहूंगा सर मैं आधे घंटे जरा सा मैं जुड़ूंगा। मतलब कि नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब कंसर्निंग द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ डिटरमिनिंग ए मोरल कॉज ऑफ एक्शन, जो दोनों के बीच में दिलो और दिमाग, यहाँ पर पिक्चर बना है एक दिल का और एक दिमाग का, दिखाई दे रहा होगा, एक आपके पास क्या हार्ट है और दूसरा क्या है ब्रेन, माने दोनों के बीच में तालमेल। ये जो 119 लोग जो जुड़े हैं ये क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स का एग्जांपल है। दिस इज द वेरी गुड, मतलब कि इन्होंने मेरी बात रखी है, किसके लिए, धर्मेंद्र सर के लिए, ये संजीव सर के लिए, बजाज मैडम के लिए, कपिल सर के लिए, श्रीवास्तव सर के लिए, ये जो 5-6 लोग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो लोग रिसोर्स पर्सन जुड़े हैं, निगम मैडम के लिए, ये लोग नॉर्मल नहीं, हम बहुत बिजी हैं फिर भी हम समय देंगे। और इसके अलावा एक व्यक्ति ऐसा है, एक पर्सनालिटी ऐसा है, एक एथिक्स ऐसा है जो नहीं, वह आज सर ने फोन किया है, आज मेरा सारा काम पेंडिंग, जैसे आज मेरा काम क्या है, पेंडिंग है आपके साथ में। मतलब कि मैंने अप्लाई किया कि इसकी गंभीरता कितनी है, इसका इंपॉर्टेंस कितना है, इसका सिग्निफिकेंस कितना है, बहुत ही गंभीरता से लिया, तो दिस इज कॉल्ड अप्लाइड एथिक्स। एक बच्चा रोता है, माँ काम पर लगी रहती है, फिर भी माँ क्या करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, दिस इज अप्लाइड एथिक्स। वह काम पर है, तो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वह सैलरी काट सकता है, लेकिन वो बच्चे को दूध पिलाती है, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड एथिक्स। नेक्स्ट, मेटा एथिक्स मीन्स व्हाट इज गुड, मतलब कि आपके साथ डेली आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मेरे साथ है लेकिन वो साथ नहीं है। नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब कि वो दिलों और दिमाग से काम करके आपके साथ समय निकाल लेंगे, और जो अप्लाइड एथिक्स है वह जो है काफी कमिटेड है, कमिटमेंट है। जैसे बड़े बड़े जो महापुरुष थे क्या थे, उनके अंदर अप्लाइड एथिक्स ज्यादा था। जो बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनके अंदर अप्लाइड एथिक्स बहुत ज्यादा होता है। वो देखते हैं कि मेरा सबसे प्रायोरिटी क्या है, मानवता, देश, मेरा नारा है क्या है, वी लव इंडिया। देश, राष्ट्र धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ी धर्म है। आजकल क्या हो गया है, बस एक घर में सोफा हो, डाइनिंग टेबल हो, पूरा माने जो क्या बोलते हैं उसको, उस लाइफ को आजकल माने मेटेरियलिस्टिक में हम जी रहे हैं। दिस इज द नॉट गुड थिंग फॉर प्रेजेंट सिनेरियो, फॉर रिसर्चर्स, टीचर्स। नेक्स्ट, अब इस एथिक्स में बात आ रही है, क्यों जुड़ा गया है कि जो हम क्या करते थे और क्या गलतियां कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंडक्ट, माने आचरण करना, और मिसकंडक्ट मीन्स आचरण नहीं करना। तो साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या है, इज द वायलेशन ऑफ एथिक्स ऑफ स्कॉलरली कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिकल बिहेवियर इन रिसर्च पब्लिकेशन। किसी के रिसर्च को हमने क्या किया, आइडेंटिकल हमने लिख लिया, कॉपी कर लिया, ये क्या है, एक साइंटिफिक मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। या आपने काम, 4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं और उसमें से किसी एक ने क्या किया, पहले पब्लिश कर दिया। हम इस स्टेज में है कि मेरे अंदर एक इंटेग्रिटी होना चाहिए, मेरे अंदर एक बीएसएफ कमांडो की तरफ वफादारी होनी चाहिए कि 4 तो मतलब 4, जैसे फिल्म थी ना अकबर, अमर अकबर एंथोनी, मतलब कि अगर हम साथ में है तो साथ में, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, जो साइंटिफिक मिसकंडक्ट है, इट कवर्स ऑल प्रैक्टिसेस व्हिच इज इमोरल, इलीगल एंड इम्प्रैक्टिकल। ऐसा काम जो क्या हो, अनैतिक हो, कानून से विरोधी हो और अव्यवहारिक हो, वह क्या है, मिसकंडक्ट है। नेक्स्ट, रूट कॉज, इसका रूट कॉज क्या है, आज जो साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है,
मान लीजिए इस पीपीटी को कोई दूसरा प्रोफेसर, कोई दूसरे आदरणीय इसको प्रेजेंटेशन दे दे। मान लीजिए इसमें से जितने लोग जुड़े हैं कहीं प्रेजेंटेशन देना हो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, एथिक्स पर, और इसी को हूबहू वहां क्या करें, प्रेजेंटेशन देने लगे। ये क्या है? साइंटिफिक मिसकंडक्ट है। कट कॉपी पेस्ट, ये हूबहू हो रहा है, इसका रूट कॉज है। नेक्स्ट, अभी एक नया वर्ड है एथिक्स में कि फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म। ये मेरे पास एथिक्स का सिलेबस भी है, अभी जो यूजीसी ने दिया है, मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल, कि there are 3 types of misconduct: fabrication, falsification and plagiarism. Fabrication, आपने देखा होगा, इट मेक्स अप डाटा और रिजल्ट्स एंड रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, मतलब कि उसको हूबहू बना देना। आप एक पिक्चर देख रहे हैं कि नीचे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, नीचे ठीक उसी के आकार का वैसा बना दिया गया है। ये क्या हो गया है? हमने बना दिया। आजकल देखिए जो मार्केट में, जैसे सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, कि जो ब्रांडेड चीजें हैं, मान लीजिए जो ऑथेंटिक चीजें हैं मार्केट में, जो ISI ब्रांड है जिसका हमारे प्राइस है मान लीजिए कि 2000 रुपया, जिस मान लीजिए कि सैनिटाइजर का दाम कितना है, मान लीजिए कि 100 रुपया, कितना दाम है? 100 रुपी, लेकिन ये फुटपाथ पर कितना मिल रहा है? यही शेप, यही कलर, 10 रुपये में। ये क्या है? दिस इज द टाइप ऑफ फैब्रिकेशन। ये मोबाइल है, मान लीजिए ये मोबाइल, ओरिजिनल मोबाइल का दाम कितना है? 20,000, और इसी मोबाइल को फैब्रिकेट करके 10,000 में। अब जो दोनों मोबाइल एक साथ रहेंगे तो दोनों लोग क्या समझेंगे? इनके पास भी वही मोबाइल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉल्सिफिकेशन, मतलब कि ऐसा मैनिपुलेट करना कि पता नहीं चले। आजकल लॉकडाउन में बहुत से लोग गायक बन गए, बहुत से लोग कवि बन गए, बहुत से लोग उपन्यासकार बन गए। ये क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च कंटेंट, टेक्निक्स और मेथड्स, और प्रिपेयर डाटा और रिजल्ट सच दैट द रिसर्च इज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन द रिसर्च रिकॉर्ड। और सबसे लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है? कॉपिंग ऑफ अनदर पर्सन्स रिजल्ट्स, किसी दूसरे को रिजल्ट को कॉपी करना। जैसे आपने काम किया, आपके फ्रेंड्स ने, किसी ने क्या किया? कॉपी कर लिया। ये क्या है? इसीलिए अभी प्लेगरिज्म जो है, उरकुंड जो है सॉफ्टवेयर जो है सारे विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी में है, जो अभी 10% किया है। आज जितना लोग रिसर्च से नहीं डर रहे हैं उतना प्लेगरिज्म से नहीं डर रहे हैं। बहुत से गाइड मैदान छोड़कर भाग गए। जैसे कोई पहलवान, कोई प्लेयर्स, कोई प्लेग्राउंड में गया, बिना प्रैक्टिस के वॉक ओवर दे देता है। जस्ट लाइक बिना आइडिया के, बिना थॉट्स के, बिना कंटेंट्स के जो गाइड रिसर्च कराने आते हैं वह क्या हो जाते हैं? प्लेगरिज्म से तबाह हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वह जो मूल जो ओरिजिनल कंटेंट है वह डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए इसको हमको फॉलो करना है। और मैं समझता हूं कि समय, थैंक्स, काफी समय हमने लिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कम समय में मैक्सिमम टॉपिक्स को मैंने कवर किया, और बहुत बहुत धन्यवाद बजाज मैडम, कपिल सर, खास करके हमारे संजीव गुप्ता सर, तो सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत आपने मैंने जो संख्या है लगातार बनी रही, मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। Will you please stop your sharing slides, sir? We have some questions. Too many questions are there, but because of the limitation of the time, I ask a few of them. Thank you, thank you. Sir, what is applied research? Applied. There are 3 types of research. Applied research. Applied research means अगर आप जो ऐसा रिसर्च, सच टाइप ऑफ रिसर्च विच इज वेरी प्रैक्टिकल, नॉट थ्योरेटिकल। जैसे कि मान लीजिए कि आप वाटर पर काम कर रहे हैं। वाटर हमारा एक पानी है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि फिजिक्स में चाहे किसी भी विषय में एक मिट्टी पर आप काम कर रहे हैं, पानी पर काम कर रहे हैं, और उस पानी से आप बना रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। शुद्ध पानी जो आज बिस्लरी है, जो रेल नीर है, रेल नीर क्या है? अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल है।
ऐसा रिसर्च जो अप्लीकेबल हो समाज के लिए, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। थैंक यू। Thank you, sir. It will surely added information to our knowledge. थैंक यू। In future also, we will definitely require insights from your valuable experiences. Thank you everyone. Thank you, Dean sir, our head of the department, all faculties who worked hard, and everyone who calmly listened to us. Thank you. Now from my side, sir, is सर the थैंक यू श्रीवास्तव सर, आपने काफी आसान शब्दों में समझाया। नहीं, टाइम थोड़ा ज्यादा समय लिया देने के मैंने। लिए नहीं No, काफी no, अच्छा sir, it's, समझाया सर, इथिक्स में भी और मेथोडोलॉजी में काफी अच्छा सबको समझ में आया। आप स्लाइड को और- सभी फैकल्टी को शेयर कर देंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल Yes, करेंगे। sure, sir. यहाँ Sir, कोई actually students also asked that आप दे whether the दीजिए। PPTs, whether the Please, PPTs are available, please, will you please send please the circulate. link, then I will Mail deliver कर it देंगे, to all mail the कर students. this will be practices of applied Yes, sir. ethics, applied ethics। more and more circulate कीजिए। Yeah, sir. Yes, sir, I will surely deliver to all the students the PPTs. Thank you सर, थैंक यू everyone. सर। रश्मि मैडम भी जुड़ी रही अपने साथ में। नहीं, Yeah, मैंने Rashmi देखा। ma'am, thank you very much. इसलिए मैंने रश्मि Tomorrow we मैडम को will भी- join you and listen to you. तो थैंक यू Okay. सर। We will Okay, join thank you, tomorrow. sir. Now the workshop is It's terminated. nice to see you and everyone, and nice Yeah. to see you all of you. Thank Thank you. you. Thank you, Nigam Thank you, ma'am. sir. Okay, thank you everyone. Have a good day. थैंक यू सर।